الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جائن کا قاعدہ: جب ایک کلمے میں دو متحرک حمزے ایک ساتھ آئیں اور ایک حمزہ مکسور ہو تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا ضروری اور واجب ہے، جیسے جائن سے جائین۔ کلمہ ایک ہو، پہلی شرط کلمہ ایک ہو، اس میں حمزے دو ہوں اور دونوں متحرک ہوں، اور وہ دونوں ایک ساتھ ہوں، ایک حمزہ ان میں سے مکسور ہو۔ یہ ساری شرائط: ایک کلمے میں دو حمزے ہوں، دونوں متحرک ہوں، دونوں ایک ساتھ ہوں، اور ایک ان میں سے مکسور ہو تو دوسرے کو یا سے بدلنا ضروری ہے، جیسے جائن سے جائین۔ یہ جائن کیسے بن گیا؟ یہ ہے جاء سے، جاء یجیء سے جاء۔ اس کے حروف اصلی ہیں جیم یا حمزہ، جاء۔ اصل میں یہ تھا جائن، جائن۔ پھر ایک قانون لگا ہے اس پہ اجوف کا، جس کی وجہ سے یہ جائن ہو گیا، جائن ہو گیا۔ الف کے بعد جو یا تھی اس کو حمزے سے بدل دیا گیا، جیسے قائل بائعن میں بدلتے ہیں، وہ آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال جائن میں دو حمزے ہیں، ایک کلمے میں ہیں، دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں متحرک، اور ان میں سے ایک حمزہ مکسور ہے۔ تو جو مکسور نہیں ہوگا، جو دوسرا ہوگا، اس کو یا سے بدلنا واجب اور ضروری ہے۔ جائن کو جائین پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جا کر اور قواعد لاگو ہوں گے اس پہ۔ صرف یہی نہیں بلکہ اور قواعد بھی پھر لاگو ہونے ہیں۔ اس کا فائدہ نمبر 1 چھوڑ دیں، وہی ساری اس کی تعلیل کی ہے، سارے قواعد اس پہ لگائے ہیں۔ فائدہ نمبر 2 دیکھیں، لفظ ائمہ میں مذکورہ قاعدہ جاری کرنا جائز ہے، واجب نہیں۔ کیا مطلب؟ ائمہ کے اندر بھی دو حمزے ہیں ایک کلمے میں، دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں متحرک ہیں، ایک مکسور ہے، تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا جائز ہے، لیکن ضروری نہیں۔ ضروری کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں آیت آ گئی ہے، لفظ آ گیا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ قرآن کریم میں ائمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ائمہ یا کے ساتھ نہیں بلکہ دو حمزوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ قاعدہ جوازی یہاں پر لاگو ہوگا، وجوبی طور پہ لاگو نہیں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اسی وجہ سے یہ فائدے کے طور پہ اس کو انہوں نے الگ لکھا۔ بہرحال یہ ان کی سوچ ہے، میرے خیال میں تو وہ قاعدہ ہی نہیں بنتا جیسے ایک مثال بھی باہر نکل جائے۔ قاعدہ اور اصول وہ ہوتا ہے جو سب کو شامل ہو، لیکن یہ ہمارے صرفی اور نحوی حضرات قاعدہ بیان کر دیتے ہیں اور 5-6 پھر اس میں سے مثالیں الگ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ان پہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا۔ بہرحال اس سے آگے قاعدہ ہے اوادموں کا قاعدہ۔
अवादिमु का कहना, जब एक कलमे में दो हमज दो हमजे हों और दोनों मुतहर्रिक हों, दोनों एक साथ आए, कलमा एक हो, हमजे दो हों, एक साथ हों, दोनों मुतहर्रिक हों, और उनमें से कोई मकसूर भी ना हो। अगर मकसूर होगा तो पिछला कायदा जारी होगा, जाइन वाला। मकसूर ना होना शर्त है, बाकी सारे शरात वही हैं जो जाइन के कायदे में थे, लेकिन एक शर्त तब्दील हुई कि मकसूर ना हो, ताकि जाइन का कायदा ना लगे इसको। हुक्म ये है, ये शरात हैं, इसके बाद हुक्म है कि दूसरे हमजे को वाव से बदलना जरूरी है। दूसरे हमजे को वाव से बदलना जरूरी है। जैसे आदिमु से अवादिमु। आदिमु एक ही कलमा है, इसके अंदर दो हमजे एक साथ हैं, दोनों हमजे मुतहर्रिक हैं, और इन दो में से कोई एक भी मकसूर नहीं है, जेर वाला कोई नहीं। लिहाजा दूसरे हमजे को वाव से बदल दें, अवादिमु कर दें, आदिमु से अवादिमु कर दें। ये गोया के दोनों, इनकी शरात करीब करीब हैं, लेकिन हुक्म अलग अलग है। वहां पर या से बदलते हैं, यहाँ पर वाव से बदलते हैं। जी, ये दो कायदे आप लोगों ने याद कर। जी, किसी का कोई सवाल है इससे मुतालिक? मैम ये उस्ताद मोहतरम, ये जो है वाव से क्यों बदला गया है इसे? क्योंकि वो पेश तो नहीं है, मतलब ये सिर्फ कायदा याद करना जरूरी है इसे। क्या मतलब? आवाज, मतलब अवादिमु वाला जो कायदा है उसमें जी, आदिमु था, असल लफ्ज क्या था? ये आदिमु था। असल लफ्ज आदिमु था। तो फिर वाव क्यों आदिमु से आया? फिर अवादिमु पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर या आती फिर भी आपका इश्काल था कि या क्यों आई है, वो क्यों नहीं आया, जी फिर भी तो आपका इश्काल बनता था ना। नहीं, यानी कि हरूफे पीछे की हरकत पेश नहीं है, तो फिर वाव क्यों आया इस नहीं, कायदे लाजमी को? नहीं है, लाजमी नहीं है कि पेश पेश से ही तब्दील किया जाए। असल में ये है कि ये कोई कायदे तयशुदा कहीं से नहीं है। सरफियों ने ये देखा कि कलाम अरब कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उन्होंने देखा कि इस कलमे को ये लोग ऐसे तब्दील कर देते हैं, तो उन्होंने इसको कायदे में तब्दील कर दिया, कायदा बना लिया। सर ठीक तो है। फिर कैसे समझेंगे? फिर अगर पेश रहता तब तो समझते हैं कि यहाँ वाव लगेगा। नहीं नहीं और नहीं, हर जगह पर वो कायदा नहीं लागू होगा कि जहां पर जो है ना वो पेश आएगा तो वहां ही वाव से तब्दील करेंगे, ये कोई ऐसा कायदा नहीं है। ये कोई कानून नहीं है कि जहां पर पेश आएगा तो वहां पर वाव से तब्दील करेंगे, जहां जेर आएगी तो वहां या से तब्दील करेंगे, ऐसा कोई कानून नहीं है। इससे उस्ताद मोहतरम, इसकी कोई कुरान में मिसाल मजीद अगर हो तो ज्यादा समझ आ जाएगा। मेरे ख्याल में इसकी मिसालें भी बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। बाकी इंशाल्लाह हम इसके इजरा में देख लेंगे। सर ये इस तरह से याद रखा जा सकता है, क्योंकि हमजा तो ऑलरेडी है ना, और अगर मकसूर होगा तो फिर या आएगी, और अगर मकसूर नहीं होगा तो फिर वाओ ही आएगी। उनका कहना यह है कि यहाँ पर या ना वाव को आना चाहिए ना या को आना चाहिए, बल्कि यहाँ पर अलिफ को आना चाहिए, जी क्योंकि मा कबल में फतहा है। उनका कहना यह है। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा कानून लागू नहीं हुआ कि हर्फ इल्लत के मा कबल की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से ही बदलेंगे, ऐसा कोई कानून नहीं है। सर यहाँ एक पर आप बस सिर्फ यही है कि मिसाल के वाव से ही साथ बदलते हैं। समझा दो। सर एक मिसाल के साथ समझा दें लिख करके तो। उस्ताद मोहतरम, असल बात ये, जैसे इसमें तीन हरूफ इल्लत इकट्ठे हो रहे हैं, वाओ भी, हमजा दो हैं, तो खैर क्या कह रहे हैं?
अफशीन जी अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। मैम मैं ये कह रही थी कि मतलब शायद आदिमु इसलिए भी आया कि एक हमजा आगे आ रहा है, एक वाव के बाद आ रहा है, 3 हरूफ इल्लत इकट्ठे हुए हैं, तो फिर इस वजह से भी आदिमु हमें याद कर रह सकता है इंशाल्लाह। अवादिमु था ना, 3 हरूफ इल्लत हैं, 2 हमजा हैं, दरमियान में वाव है। 3 हरूफ इल्लत कैसे आ गए? उस्ताद मोहतरम, हमजा एक हरूफ शुरू में इल्लत, हमजा है, फिर वाव है, जो अगला अलीफ आ रहा है, हमजा हमजा हरूफ आ रहा है। इल्लत में से कहाँ से है? हमजा हरूफ इल्लत में से नहीं है। अच्छा जी, सही 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 उस्ताद मोहतरम, ठीक है। अफशीन जी हरूफ इल्लत कौन कौन से होते हैं? अलिफ वाव या। अलिफ या वा। हाँ जी, तो इसलिए अब आपको अपना जवाब खुद ही मिल गया ना। जी जी तो बस इल्म सर्फ वाले जैसे कहें वैसे सुन लिया कीजिए, इसको अपना जी सुसाल जी समझिए। जी जी। ठीक है जी। ठीक है जी। जी किसी का उस्ताद मजीद मतलब सवाल? मेरा एक सवाल है कि ये जो 2 हमजा इकट्ठे आए और इसमें एक मकसूर हो, तो इसमें पहले वाला मकसूर होना चाहिए या दूसरा मकसूर होना चाहिए? कायदे के अंदर ऐसी कोई बात आई है? नहीं, अभी ये कहा ना कि 2 मुतहरिक हमजा एक साथ आए तो एक हमजा मकसूर हो, तो फिर दूसरे हमजा को या से बदलना जरूरी है? नहीं, ठीक है, ये तो आप दूसरे कायदे की बात कर रहे हैं। पहले कायदे की जो बात है, पहले कायदे के अंदर ऐसी कोई बात उन्होंने जिक्र की थी पहले और दूसरे वाली? नहीं, ये नहीं कहा, यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि नहीं सिर्फ एक कहा। हमजा मकसूर हो जी, तो वो कोई भी हो सकता है? जी कोई भी हो सकता है। जी, चलो शुक्रिया। सर इसको लिख के बता ये दें नपे ये अगर नपे तुले मेहरबानी। अल्फाज होते हैं कायदे के अंदर। नपे तुले अल्फाज होते हैं, यानी हर हर चीज को की जांच पड़ताल करके ये अल्फाज लिखे जाते हैं। अब वहां पर उन्होंने दूसरे या पहले की ताजीन नहीं की, और यहाँ दूसरे कायदे के अंदर उन्होंने ताजीन कर दी है दूसरे हमजे की। सादे मोहतरम जो वो सवाल करना चाह रही है ना, मेरे ख्याल में जी, वहां पे उनकी सवाल के अंदर ही जवाब आई थिंक मौजूद है कि वो कह रही हैं कि पहले या दूसरे हमजा की बात नहीं हुई है यकीनन यहाँ पर। लेकिन जब तब्दील दूसरे हमजा को किया जा रहा है तो फिर ऐसा ही होगा ना कि पहले हमजा पर ही हमजा जो है वो पहला ही मकसूर होगा, बदला तो दूसरा हमजा जाएगा ना। कायदा ये है हम्म। कि दो हमजों में से कोई एक मकसूर हो। तो ठीक बदला है, दूसरा जाएगा। हाँ। तो सादी मतलब अगर दूसरे नंबर पर वाला हमजा भी अगर मकसूर हो तो फिर भी दूसरा ही हमजा बदला जाएगा। जी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जैसे यहाँ पर जा ई उन है, अगर ये जा इन होता, यहाँ पर जेर होती, तो फिर दूसरा ही हमजा बदला जाता, दूसरा हमजा बदला जाता। उसी जी, को ही या से बदला जाता। जी। ठीक ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम। जी मजीद किसी का कोई सवाल है? मैम अब आप समझा दें जरा अच्छे से। अस्तगफिरुल्लाह। आप लोग आप लोग अभी कवायद याद करें, कवायद को अभी समझना नहीं है आपने। ठीक है, जब कवायद हम लगाएंगे ना, तालील करेंगे, तालीलें जब आएंगी तो फिर जो है आप लोगों ने कवायद को समझना है कि कैसे लगाते हैं इनको। अभी आप लोग इनको लफ्ज बलफ्ज याद करें। जी ठीक है उस्ताद मोहतरम, इंशाल्लाह कवायद ये याद। याद करने की चीज है, आप इसे याद करें। जब आप तालीलात में जाएंगे, तालील करेंगे, तो फिर जो है ना आपने इनको फिट करना है वहां पे। और अगर उस वक्त आपको याद ना हुए तो फिर आप लगा नहीं सकेंगे।